جو بھی کہتا ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں وہ بکواس کرتا ہے، اس لیے کہ اگر نمبر پورے ہوتے تو اب تک ترمیم ہو چکی ہوتی۔ میں کہتا ہوں آج آپ رات کو اعلان کریں، وہ گھنٹے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیں گے، لیکن آپ دبانا چاہتے ہیں۔ آپ بزور شمشیر، بزور طاقت، بزور کلاشن بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ملک اس وقت جس سیاسی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اور آئے دن میں اور آپ ٹی وی جب بھی آن کرتے ہیں، سوشل میڈیا آن کرتے ہیں تو فساد کی خبریں ہیں، پریشانیوں والی خبریں ہیں، اب ملک کے لیے نقصان والی خبریں ہیں، سیاسی عدم استحکام والی خبریں ہیں۔ بلوچستان سے کل پھر 20 افراد کی جاں بحق ہونے کی، بلکہ ان کو زبردستی مارنے کی خبر میڈیا پہ آئی۔ میڈیا پہ دل پریشان ہوا دیکھ کے۔ حکومت کو ان کاموں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں جرگے پہ اٹیک ہوا، پھر اس کے بعد کسی کو عقل آئی، انہوں نے کہا کہ آپ مل بیٹھ کے جرگے والوں سے مذاکرات کریں، تو محسن نقوی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی، سنا تھا گورنر وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے، یہ آئینی عہدہ ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے جتنے بھی گورنر بنائے گئے ہیں سب دبا کے سیاست کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی سیاست اور ڈرٹی سیاست کر رہے ہیں۔ آپ روز دیکھیں اس کو، فیصل کریم کنڈی کو، کسی نہ کسی چینل پہ بیٹھا اپنے وزیر اعلیٰ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے، اور اس کی اول و آخر خواہش ہے کسی طرح گورنر راج لگ جائے اور سارا صوبہ میرے کنٹرول میں آ جائے۔ ادھر پنجاب کا گورنر اس کی بھی مریم نواز صاحبہ سے نہیں بن رہی، اور ان کے بیانات بھی اکثر میڈیا کی زینت بنتے رہتے ہیں، اور اپنے کراچی کا گورنر تو ویسے ہی شہزادہ ہے، اب وہ تو جو کچھ تماشے سیاست کے لیے کر رہا ہے جب سے آیا ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں، لگتا ہے کہ جیسے صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ ہے۔ کوشش کی ہٹانے کی پیپل پارٹی نے اور نون لیگ نے مل کے، لیکن ظاہر ہے ان کے پاس 20-21 ووٹ ہیں، ایک ایک ووٹ ان کو چاہیے، ووٹوں کے لیے یہ مرے جا رہے۔ یہ آئینی ترامیم کے لیے ووٹ خریدنے، ووٹ توڑنے، ڈرانے، دھمکانے، بچوں بیویوں کو اٹھانے سے بھی گریز نہیں کر رہے۔ اگر آپ اور ہم دیکھیں، سارا دن میڈیا دیکھیں، تو لگتا ہے کہ ملک میں صرف ایک ہی مسئلہ ہے اور کوئی مسئلہ نہیں رہا، سب مسئلے ختم ہو گئے۔ غریبوں کی غربت ختم ہو گئی، بجلی کے بلوں کے بہت زیادہ بل آنے ختم ہو گئے، گیس کے بل ختم ہو گئے، مہنگائی ختم ہو گئی، سارے مسئلے حل ہو گئے۔ حکومت کو ایک ہی مسئلہ نظر آ رہا ہے، صرف غریب خودکشیاں کر رہا ہے، لیکن حکومت کے لیے غریب مسئلہ نہیں، غربت مسئلہ نہیں، روتا رہے، خودکشی کرتا رہے، بچوں کو نہر میں دریا میں پھینکتا رہے، بچوں کو خود ذبح کرتا رہے، حکمرانوں کو شہباز، رانا، خواجہ اور وزیر قانون اور عطا تارڑ اور بلاول بے نظیر کا پتر، ایک ہی مسئلہ ان کو، آئینی ترامیم کی وجہ سے بقول ان کے ملک نہیں چل رہا جب تک آئینی ترامیم نہیں ہوں گی۔ وہ آئینی ترامیم کیا ہیں؟ کوئی ایک بھی مجھے ماہرین میں سے بتا دے کہ کیا اس میں بجلی کے بل سستے کرنے کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ اس میں ملک سے سود کے خاتمے کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ اس میں غریبوں کے مسائل کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے جو مسودہ تیار کیا ہے یا کر رہے ہیں، اس کی ایک دو جو میں نے چیزیں سنی ہیں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے سود کے خاتمے کی بات کی، انہوں نے نظریاتی کونسل کی سفارشات کو منظور کرنے کی بات کی۔ نہ بلاول کو اس کی پرواہ ہے، نہ شہباز کو ہے، ان کو صرف کرسی ہے، کرسی بس، اس پہ ہم چمٹے رہیں
उस वक्त तक चिमटे रहें जब तक इजराइल भी ना आ जाए और कोई ऐसी आईनी तरामीम आ जाए कि इजराइल का आना भी बंद कर दिया जाए, इजराइल रूमें कब्ज करने के लिए आ ही ना सके, ऐसी को तरामीम कर दी जाए। अदालतें मर्जी की हों, जज मर्जी के हों, और जो खिदमत खातर तवाज़ो जज करे उसकी उम्र 65 से बढ़ा के 68 साल कर दी जाए, बल्कि वो बैठा ही रहे, एक्सटेंशन दे दी जाए। जिस तरह इस काजी के लिए काजी ने जो बलंडर किए, मुल्क में आइन का बेड़ा गर्क किया, अदालत को टगे टोकरी कर दिया, अदालत का वकार और इज्जत दांव पे लगा दी, इस तरह का उनको कुछ चाहिए। ऐसा को आ जाए, मुल्क में 8 फरवरी के इंतखाबात पे डाका पड़ा, 8 फरवरी से पहले एक जमात का बल्ले का निशान छीना गया, उस जमात को इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया गया, उसके लोग आज़ाद लड़के किसी न किसी तरह असम्बलियों में पहुंचे, वो सारे केस जो उन्होंने दायर किए वो अदालतों में पड़े हुए। लेकिन जज बिलावल को ऐसा चाहिए, शहबाज को ऐसा चाहिए जो वो केस सुने ही ना, देखे ही ना, को आईनी अदालत में बिठा दिए जाएं, 3-4 रिटायर्ड जैसे काजी ने बुला के बिठाए, सरदार तारक और मजर जैसे, उनको तनख्वाहें मिलती रहें, मराआत मिलती रहें, सरकारी खजाने से लूट मार होती रहे और वो हुक्मरानों की बूट पालिश करते रहें, ऐसे जज चाहिए। ये है आईनी तरामीम का खुलासा। मौलाना डट गए। अब तक ये आप सुनते हैं बिलावल झूठ बोलता है, आजम नजीर तारड़ उससे भी बड़ा झूठा है, और जो भी बंदा इरफान सिद्दीकी समेत जो भी कहता है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं, वो बकवास करता है। इसलिए कि अगर नंबर पूरे होते तो अब तक तरमीम हो चुकी होती। जिस दिन सारी रात MNA और सेनेटर को बिठाए रखा, पकड़े हुए थे, बंद किए हुए थे, मुर्गियों के चूजों की तरह MNA बंद किए हुए थे, सेनेटर बंद किए हुए थे, बाहर नहीं निकल सकते, किसी से मिल नहीं सकते। अगर आपके नंबर पूरे होते तो आप उसी दिन ये तरमीम कर चुके होते। अगर मौलाना के बगैर आपके नंबर पूरे होते तो आप मौलाना की तरफ देखना भी पसंद ना करते। ये वो हकीकत है जो मौलाना भी जानते हैं, मौलाना की पार्टी का एक एक कारकुन भी जानता है। क्या मौलाना को ये खबर नहीं मिल गई कि नवाज शरीफ ने सहूलतकारों से कहा था कि हमें ऐसी हुकूमत दें, इतने नंबर हमें दें कि हमें मौलाना की ज़रूरत ना रहे। मौलाना लूट मार के बड़े बड़े ऐसे ऐसे मौलाना के मशगले हैं कि जो हमसे पूरे नहीं हो सकते। हमें मौलाना के बगैर हुकूमत चाहिए। मौलाना को आउट कर दिया, मौलाना को फारग कर दिया, और अब अल्लाह की कुदरत है, मौलाना की ज़रूरत पड़ गई, मिन्नतें कर रहे हैं, जफियाँ डाल रहे हैं, जा जा के बार बार एक ग्रुप जाता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा आ जाता है। मौलाना की मिन्नत समाजत हो रही है, यूं कह लूँ मौलाना की जूतियाँ पालिश हो रही हैं, मौलाना राज़ी हो जाए। मौलाना सियासी खिलाड़ी हैं और पुराने खिलाड़ी। मौलाना ने जो चीज़ें रखी हैं, एक दो मेरी नज़र से गुजरी, मुसव्वदा भी अल्लाह करे हम तक भी किसी तरह पहुँच जाए। मौलाना ने कहा कि अगर बाकी तरमीम लाना ज़रूरी है तो सूद के खात्मे की तरमीम भी लाओ। अगर और तरामीम तुम्हारी मर्जी की ज़रूरी है तो इस्लामी नज़रियाती कौंसल वो बनाई इसलिए गई थी कि वो सिफारशात पेश करेगी, दस्तूर के मुताबिक, दस्तूर को कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाल दिया जाएगा, जितने गैर शरई काम है सब बंद कर दिए जाएंगे। तो मौलाना अगर ये शराइत अपनी मंजूर करवाने में कामयाब हो गए तो मौलाना तारीख़ का हिस्सा बन जाएंगे, तारीख़ में उनका नाम अच्छे लफ्ज़ों से लिखा जाएगा। इस वक्त मैं अर्ज़ कर रहा था, एक ही मसला तरामीम और तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम ये है, तहरीक इंसाफ ने 15 अक्टूबर को फिर एहतजाज का ऐलान कर दिया।
चीखें मार रहे, राना ख्वाजा, देखो जी मुल्क दुश्मन जमात है, देखो जी इनकी कमीन गाहों में इनको बंद कर देंगे, देखो जी ये कितने कैसे लोग हैं कि जिस दिन मेहमान बाहर से आ रहे हैं उसी दिन ये एहतजाज करना चाहते हैं, ये पाकिस्तान की बदनामी चाहते हैं। तो फकीर का आपसे ये सवाल है कि आप में अगर थोड़ी सी अक्ल होती, आप इस मुल्क के हमदर्द होते, तो आप जिस दिन पहले वो धरना लेके आए थे उसी दिन ऐलान करते कि आईनी तरामीम का बाब बंद। ये बाद में देखेंगे, इस शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद अभी मेहमान आ रहे हैं, आईनी तरामीम एक्सटेंशन का बाब बंद। आप तो अपनी पूरी साजिशें रात के अंधेरों में और अगवा करके मुखालिफ पार्टी के उम्मीदवारों को, मेंबरों को अगवा करके, अपनों पे जबरदस्ती करके, आप तो हर सूरत शंघाई कॉन्फ्रेंस के पर्दे में तरामीम का खेल खेल रहे हैं कि आपको काजी फायज ईसा जैसा मिला रहे। बेशर्मी नहीं, इससे बड़ी बेशर्मी और क्या होगी कि कम से कम 15 दिन पहले आने वाले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन करना लाजमी था, अभी तक नहीं किया। आज 12 गुजर रही है, 12 दिन बाकी रह गए, सौदेबाजी कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि कोई मर्जी का जज उठा के उसको लगा दें। अदलिया में टकराव करवाना चाह रहे हैं, अदलिया का सत्यानाश करना चाह रहे हैं। कहते हैं जी ये मुल्क दुश्मन है, ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं? वो एहतजाज तुम्हारी बदअमालियों, बद किरदारियों और आइन दुश्मन कार्रवाइयों के खिलाफ कर रहे हैं। 1000 के करीब कारकुन एहतजाज से गिरफ्तार किए थे। अगर तुम में थोड़ी सी अकल भी होती, तुम कहते इनको रिहा कर रहे हैं, सियासी कारकुन हैं, ये अपना एहतजाज का हक इस्तेमाल करने आए थे, खुद ही उनको रिहा कर देते। खान पे पाबंदियां लगाने की बजाय जेल में मुलाकात की पाबंदियां लगाने की बजाय उसे जेल में जाके इत्मीनान में लेते। नहीं, बस शंघाई कॉन्फ्रेंस की आड़ में मुल्क में ये भी तरामीम भी हो जाएं, एक्सटेंशनें भी हो जाएं, हमारी हुकूमत भी कायम रहे और हम धोखा देने में भी कामयाब हो जाएं। आप जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, जितने मर्जी बयानात दागें, बच्चा बच्चा जानता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अब भी अगर मुखलिसन, मैं आज कह रहा हूं, इसी वक्त कह रहा हूं, ऐलान करें तहरीके इंसाफ के तमाम सियासी कारकुन जिनको आपने 4 अक्टूबर के एहतजाज में पकड़ा, उनको रिहा करने का ऐलान करते हैं। आप कहें खान पे जो पाबंदियां जेल में लगी हैं उन्हें ख़त्म करने का ऐलान करते हैं। अब मैं कोई जिम्मेदार तो नहीं हूं, ना तहरीक इंसाफ का हूं, लेकिन एक तज्जियाकार होने के नाते मैं कहता हूं आज आप रात को ऐलान करें, वो घंटे बाद एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर देंगे। लेकिन आप दबाना चाहते हैं, आप बज़ोरे शमशीर, बज़ोरे ताकत, बज़ोरे कलाशनकोफ मुल्क में इक़्तिदार पे काबिज रहना चाहते हैं। आप जीते नहीं हैं, हारे हुए हैं। आप मालिक मकान नहीं हैं, आप डाकू और काबिज हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं मेरा कब्जा मान लो। घर वालों को एहतजाज करने का हक भी नहीं दे रहे। तो फिर आप ही अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें कि कसूरवार आप हैं या कोई दूसरा है। आप अगर मामला ठीक करना चाहें तो फ़कीर की राय ये है कि ये 10 मिनट में ठीक हो सकते, एक आर्डर से ठीक हो सकते। अब आप खैबर पख्तूनख्वा में जाके साथ बैठ गए हैं, तो मुल्क के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? एक सूबे के लिए बैठ सकते हैं, वफाक के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? मुल्क के मुस्तकबिल के लिए क्यों नहीं बैठ सकते? वहां आपने उनको जिन पे आप पाबंदी लगा रहे थे कि ये दहशतगर्द तंजीम है, इसको गैर मुल्क की फंडिंग होती है, उनके साथ बैठ गए, उनके मुतालबात भी आप तस्लीम करेंगे। तो यहां वफाक में आप जिनके साथ फड्डा डाल के बैठे हुए हैं, रोज उनसे मिलते भी हैं, मिन्नत समाजत भी करते हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, धमकियां भी देते हैं और इल्ज़ामात भी लगाते हैं। अल्लाह इन सियासतदानों को हिदायत अता फरमाए और मेरे मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमाए।
ایسے بے ضمیر سیاستدان جن کو پتہ ہے ہم ہارے ہیں، ہم دوسرے کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ایسے بے ضمیر سیاستدانوں سے، ایسے بکاؤ مال سے اس قوم کی اور ملک کی جان چھڑا دے۔